پی ٹی آئی سیاسی نہیں دہشت گرد جماعت ہے. انہوں نے ہمیشہ ملک کی ترقی کے خلاف کام کیا ہے. ان کا مقصد صرف فتنہ اور فساد پھیلانا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس. مزید کہا ایک جماعت پھر سے اسلام آباد پر یلغار کرنے کو تیار ہے. شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر مظاہروں کا اعلان ملک کے خلاف پروپیگنڈا ہے. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. اس بار کوئی رعایت نہیں ہوگی. قیام امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے. اب یہ نامعلوم جگہ سے جو ہے وہ احتجاج کی کال آئی ہے اور اس کال میں جو ہے وہ اب یہ ایگزیکٹلی 15 اور 16 جو اس کانفرنس کے ڈیز ہیں اس کے اندر یہ پلان کیا گیا ہے کہ اسلام آباد پہ یلغار کرنی ہے. تو یہ بات تو اور یہ دوبارہ جو احتجاجوں کی سیریل ہے یہ دوبارہ شروع کی جا رہی ہے. لیکن پنجاب تو الحمدللہ اس نے ہمیشہ یہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کی وجہ سے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ ان دس سارا فساد کا پروگرام. اور کل بھی پرسوں شاید غالباً ملتان میں کہ کہاں انہوں نے جو ہے وہ جلوس نکالا تھا. اللہ کے فضل سے ایک لڑکی جو پھر بھاگتی ہوئی پولیس کو دیکھے جیسے بھاگی وہ آپ سب نے دیکھا ہے, اور 10 عدد لڑکے تھے وہ نکلے اس پورے احتجاج کو جو ہے وہ کرنے کے لیے. اور لوگ جو ہے وہ پنجاب میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہیں. لاہور جلسے کا حال بھی آپ سب لوگوں نے دیکھا تھا, اور کل جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے اسلام آباد پہ ایک اور یلغار کرنا ہے. خود کسی نے باہر نہیں نکلنا, خود جو ہے ہمیں خطرہ بڑھا ہے. اور خطرہ کس سے ہے؟ اپنے آپ سے. وہ میں آپ کو بھی آگے جا کے بتاتی ہوں. اور جو ہے وہ کبھی تہ خانے میں کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کسی کھیت کھلیان میں کھڑے ہوتے ہیں, وہاں سے ویڈیو بیان جاری ہوتا ہے بس پاکستان کے نوجوانوں انقلاب لے آؤ, پر ہم نے ہمارے پہ نہ رہنا, ہم نے باہر نہیں نکلنا. تو یہ وہ انقلاب ہے جو وہ لانا چاہتے ہیں. ان کو اتنی ہمت ہے نا تو آئیں اپنا احتجاج خود آ کے لیڈ کریں, اور اس دفعہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. پاکستان کے خلاف یہ جو اعلان جنگ ہے, میں کیٹیگوریکلی کہنا چاہتی ہوں کہ کل تحریک فساد نے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. پاکستان کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستان کے دوسرے ملکوں سے تعلقات, اس کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. اور اس اعلان جنگ کا جواب پھر جیسے جنگ کے اندر دینا چاہیے. پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. سینٹرل عدالت نے پرویز الہی کی بہو زارا الہی کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے. تفصیلات ابوبکر صدیق کی اس رپورٹ میں. پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کا معاملہ. اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج تنویر احمد شیخ نے مقدمے پر سماعت کی. عدالت نے پرویز الہی کی بہو زارا الہی کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی. ایڈوکیٹ فاروق امین رانا زارا الہی کے پلیڈر مقرر. عدالت میں موقف اختیار کیا گیا کہ زارا الہی پردہ نشین خاتون ہیں. عدالت میں پرویز الہی کے وکلاء کی جانب سے ان کی حاضری معافی کی درخواست بھی دائر کی گئی. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی طبیعت ناساز ہونے کے باعث پیش نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے. عدالت سے استدعا ہے کہ ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کرے. عدالت نے پرویز الہی کی ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست بھی منظور کر لی. عدالت نے پرویز الہی کو آئندہ سماعت پر طلب کرتے ہوئے مقدمے میں مزید سماعت 5 نومبر تک ملتوی کر دی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ابوبکر طارق, لاہور نیوز. محکمہ خوراک کی غفلت اور نااہلی صارفین پر بھاری پڑنے لگی. سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی آٹے کی طلب بڑھ گئی. ملک بھر کی اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا. وزیر خوراک کا کہنا ہے کہ کسان کے نام پر ذخیرہ اندوز عوام کو دیے گئے ریلیف کو چھیننے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر. محکمہ خوراک پنجاب نے اوپن مارکیٹ میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ روکنے کے لیے کارروائی کا فیصلہ کر لیا. پنجاب میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 50 روپے اضافہ ہوا. لاہور میں 20 کلو کا تھیلا ایکس مل ریٹ 1740 روپے, پرچون ریٹ 1770 روپے مقرر. سندھ میں 20 کلو کا تھیلا 60 روپے مہنگا. بلوچستان میں آٹے کی قیمت 90 روپے کلو ہو گئی. کے پی میں 20 کلو کا تھیلا 1790 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. لاہور میں گندم 3000 روپے من, راول پنڈی میں 3200 روپے من, کراچی میں 100 کلو گندم 8000 روپے, کوئٹہ میں 7500 روپے تک جا پہنچی. پشاور میں گندم کی فی من قیمت 3080 روپے تک جا پہنچی. مرکزی چیئرمین پاکستان فلور ملز آسم رضا کا کہنا ہے فری مارکیٹ پالیسی فائدہ مند ہے. پنجاب کی فلور ملز نے 6 ماہ تک اپنے پاس موجود گندم کی پسائی کی. کوئٹہ میں گندم کی آمد کم اور معیار ناقص ہے. سندھ میں گندم دستیابی کم ہونے سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. پنجاب میں پابندی کے باعث کے پی کی ملز
परेशानी का शिकार हैं। दूसरी जानब वजीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का कहना है मार्केट में गंदम या आटे की किसी सतह पर किल्लत नहीं। तमाम इजला में 10 और 20 किलो आटे के थैले मुकर्रर करदा निरखों पर फरोख्त हो रहे। लाहौर में 10 किलो आटे का थैला 865 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमती गोदामों में 22.5 लाख मीट्रिक टन की वाफर मिकदार में गंदम जखीरा है। प्राइवेट मिल्स के पास नॉन ग्राइंड 9,80,000 मीट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर खुराक का कहना है कि किसान के नाम पर ज़खीरा अंदोज़ अवाम को दिए गए रिलीफ को छीनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। मौसम सरमा शुरू होने से कबल ही LPG आवाम की पहुंच से बाहर होने लगी है। ओगरा रेट पर LPG शहर में कहीं दस्तयाब नहीं। ओगरा रेट 251 रुपये 30 पैसे है, मगर शहर में 270 से 290 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने से शहरी परेशान है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। सर्दियां शुरू होने से पहले ही LPG माफिया सरगर्म। LPG आम सार्फिन की पहुंच से बाहर होने लगी। कीमतों में खुद साख्ता इजाफा। शहर में ओगरा रेट पर LPG कहीं भी दस्तयाब नहीं। ओगरा ने रवामा फी किलो 251 रुपए 40 पैसे रेट मुकर्रर किया, लेकिन शहर भर में 270 से 290 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है। महंगी LPG से शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। कहते हैं LPG महंगी होने से महंगाई में इजाफा हो रहा है। ऑटो रिक्शा लोडर गाड़ियों के किराए भी मजबूरन बढ़ाने पड़ते हैं। दिहाड़ीदार तबका महंगाई के हाथों पिस चुका है। ओगरा अगर रेट मुकर्रर करती है तो इस पर अमल दरामद भी करवाए। ज़िला इंतजामिया और पुलिस बड़े माफिया के बजाय छोटे दुकानदारों की पकड़ धकड़ और जुर्माने करती है। जितने पैसे कमाए आधे से ज्यादा तो गैस पे चल के जाते हैं और बाकी घर का खर्चा भी मुश्किल से बिल जो सर पे चढ़ जाते हैं। फिर पीछे से हल निकाला जाएगा ओगरा की तरफ से। ओगरा का जो रेट होता है वो कहीं पे भी नहीं चलता है। वो ना प्लांट वाले उसी पे रेट पे दे रहे हैं और ना ही दुकानदार उस पे मुहैया करते हैं। जो भी निचला तबका है वही पिसा जा रहा होता है इसी रेट के चक्कर में। दुकानदारों का कहना है कि जो रेट प्लांट से मिलेगा उसी के हिसाब से दुकानदार आगे बेचेगा। अगर कीमतों को कंट्रोल करना है तो प्लांट से करें। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती महंगाई सारिफीन की जेब पर भारी। मौसमी सब्जियां और फल फिर गरीब की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त और अंडों की कीमत में इस्तेकाम भी किसी काम न आया। आज भी 10 सब्जियों के नर्ख मजीद बढ़ा दिए गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गैर फाल। शहरी खुद साख्ता महंगाई के हाथों यरगमाल। सरकारी रेट लिस्ट के बरअक्स मार्केट में दुकानदारों ने मनमाने रेट लगा रखे हैं। शहर के पोश इलाकों में कीमतें गली मोहल्लों की निस्बत बहुत ज्यादा हैं। सार्फिन ने प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने का मुतालबा किया है। बाजार में सब्ज मसाला जात की कीमतें आसमान को छूने लगी। अदरक थाईलैंड की कीमत 1200 रुपए किलो तक जा पहुंची। सब्ज मिर्च 250 रुपए किलो, लीमू चाइना 150 रुपए किलो, आलू कच्चा छिलका 120 रुपए किलो, बैंगन 120 रुपए किलो, करेले 220 रुपए किलो, शलजम 220 रुपए किलो, घिया कद्दू 180 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। पोल्ट्री मसनूआत में ब्रायलर गोश्त 595 रुपए किलो पर बरकरार है। फार्मी अंडों में तेजी रही, मजीद 1 रुपया महंगा होकर 297 रुपए दर्जन तक जा पहुंचे। शहरी कहते हैं रोजाना बढ़ती महंगाई से कुव्वत खरीद सुकड़ रही है। जिस दुकान पे चले जाएंगे हर दुकान का अपना रेट होगा। बेशक इनके पास पेपर क्यों नहीं है गवर्नमेंट के जो अलाउ हुए कि जो ये रेट लिस्ट होनी चाहिए। इसकी वजह से जो तेल नीचे आ रहा है और चीज़ें महंगी हैं। तेल जब ऊपर चले जाएगा चीज़ें फिर महंगी हो जाएंगी। टमाटर भी 150 रुपये का किलो है, प्याज भी 160 रुपये का किलो है। वो मुर्गी का गोश्त किलो 630 रुपये 670 रुपये से हर चीज़ महंगा है यार। सरकारी सतह पर फलों की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इसके बावजूद मार्केट में फलों की कीमतें सरकारी नर्खनामों के बरक्स वसूल की जा रही हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। DG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर ऑयल मिल्स और यूनिट्स की चेकिंग का अमल जारी है। 87 ऑयल यूनिट्स की चेकिंग की गई है। 3 यूनिट्स को बंद कर दिया गया है। 12 यूनिट्स को 7,90,000 के जुर्माने आयद किए गए हैं। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना है कि 16,440 लीटर नाकिस और मुज़र सेहत ऑयल तल्फ किया गया है। 55 यूनिट्स को इस्लाही नोटिस जारी करके 11 सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं और यूनिट्स में सिफाई के नाकिस इंतजामात और हशरात की भरमार पाई गई है। DG फूड अथॉरिटी ने कहा है कि मिलावट और जालसाजी में मुलव्विस नासिर के खिलाफ हमारा ऐलान जंग है। सेहत दुश्मन नासिर के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेस के नए तलबा और तालिबात के लिए दीदा और दिल फर्शे राह कर दिए। तारुफी सेशन में तलबा और तालिबात को पुरतकवाक अंदाज में खुशामदीद कहने के साथ उन्हें कवायद व ज़वाबित बारे भी आगाही फराहम की गई।
लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेज में मुनक्किद होने वाले तारफ़ी सेशन में नए आने वाले तलबा और तालिबात के साथ फैकल्टी अराकीन की भी भरपूर शिरकत रही। सेशन के दौरान स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में तफसील से आगाही फराहम की गई। यूनिवर्सिटी का आज़म है कि स्टूडेंट्स यहाँ से फारुगुल तहसील होने के बाद मुआशरे में अपना भरपूर किरदार अदा करें। हॉस्पिटल और मेडिकल साइंसेस के स्ट्रक्चर के साथ जब हमने 3 साल पहले इस यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया तो हम बहुत सारे मामलों में बाकी फ़्रेश और नई यूनिवर्सिटीज़ जो आई हैं और जो चल रही हैं उनसे कहीं आगे हैं, और इंशाअल्लाह ताला उसी हिसाब से हमारे प्रोग्राम्स मैच्योर्ड ज़्यादा हैं और हम कहीं अच्छे बेहतर प्रोफेशनल प्रोड्यूस करते हैं अल्लाह के फजल करम से। सेशन के दौरान तलबा और तालिबात को यूनिवर्सिटी के क़वाइद व ज़वाबित के बारे में भी तफसील से आगाही फराहम की गई। बताया गया कि अपनी ज़िंदगी मुस्बत असूलों के मुताबिक गुजारने वालों के लिए तरक्की का रास्ता कदरे आसान हो जाता है। इस ओरिएंटेशन डे पर इनकलकेट कर रहे हैं स्टूडेंट के माइंड में राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कि आपके ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए कि आपकी हैंड्स ऑन क्लिनिकल ट्रेनिंग इन लाइन हो आज की इस बदलते हुए माहौल के अंदर, इस बदलती हुई दुनिया के अंदर, और आप आज से 5 इयर्स नेक्स्ट सोचें कि जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगे क्या आप उनकी मास्टरी इस यूनिवर्सिटी में हासिल कर रहे हैं। तालीमी शोबे में मुनफरिद शनाख्त रखने वाली लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेज ज़हीन तलबा तालिबात के लिए वज़ाइफ का भी जामे प्रोग्राम रखती है। हम एक बहुत मैसिव स्कॉलरशिप्स जो है वो बच्चों को ऑफ़र करते हैं, जिसमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप हैं, मेरिट स्कॉलरशिप हैं, स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप हैं और हमारे कुछ किनशिप के जो हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी बच्चे अफोर्डेबिलिटी की वजह से परेशान हों उनको भी हम इस यूनिवर्सिटी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट तालीम दे सकें। ये मौका उन तलबा तालिबात के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल था जो अपने तालीमी सफ़र में नए रास्ते पर कदम रख रहे हैं, नए अज़्म के साथ। पीछे इतना सक्सेसफुल रहे हैं वैसे ही हम लोग आगे भी उतना सक्सेसफुल रहें और इंस्टीट्यूट का, अपने पेरेंट्स का अपना ऐसे ही नाम बनाएं। मैंने FSC किया पहले पंजाब कॉलेज से और अब मैं यहाँ पर आई हूँ युबास लाहौर मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए आई हूँ BSI कॉलेज में। मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, और उधर से भी मुझे काफ़ी हावना हुई कि किस तरह की यूनिवर्सिटी है, अच्छी है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी होती हैं। कोई शक नहीं कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल एंड अप्लाइड साइंसेज आज की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। सोहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस की नई दाखिला पॉलिसी आ गई। मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की क्लासें 1 फरवरी जबकि डेंटल कॉलेजेस में BDS की क्लासें 1 मार्च 2025 से शुरू होंगी। इस्लामाबाद के तलबा ओपन मेरिट पर दाखिले नहीं ले सकेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस के लिए नई एडमिशन पॉलिसी जारी। मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की क्लासें 1 फरवरी और डेंटल कॉलेजेस में BDS की क्लासेस 1 मार्च 2025 से शुरू होंगी। इस्लामाबाद के तलबा ओपन मेरिट पर दाखिला नहीं ले सकेंगे। इस्लामाबाद के तलबा के लिए पंजाब में MBBS की सिर्फ 3 सीटें मुख्तस। नारोवाल मेडिकल कॉलेज की 100 सीटों पर भी रवां साल दाखिले होंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए ऑनलाइन दरखास्तें 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक वसूल की जाएंगी। सरकारी डेंटल कॉलेजेस में दाखिले की ऑनलाइन दरखास्तें 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक जमा होंगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 5 से 19 नवंबर तक दरखास्तें वसूल होंगी। प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की दरखास्तें 5 से 19 दिसंबर तक वसूल की जाएंगी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज करेगी। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने एडमिशन पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब आपको बताएं, मारूफ अदाकार आबिद कश्मीरी का नमाज जनाजा कल 2 बजे शादबाग के इलाके में अदा किया जाएगा। आबिद कश्मीरी का 2 रोज़ कबल इंतकाल हुआ था। मरहूम का बेटा बैरून मुल्क से आज रात वतन वापस पहुंचेगा। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, बताइएगा। आज भी पाकिस्तान के मारूफ अदाकार आबिद कश्मीरी का नमाज जनाजा कल 2 बजे अदा किया जाएगा। नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके गोलबाग शाहबाग में अदा किया जाएगा और आबिद कश्मीरी का 2 रोज कबल इंतकाल हुआ था और मरहूम का बेटा जो है वो बैरून मुल्क में क़याम पज़ीर है। आज रात वो वतन वापस पहुंच रहा है, जिसकी वजह से 2 रोज बाद जो है उनका नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे उनकी रिहाइश का जो शाहबाग हसनपुरा में है, वहाँ पे मशहूर एक गोल बाग है, वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी और उनकी तदफीन जो है मुकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मुजाहिद।